All right. So, good evening, everyone. We are going to begin with today's lab session. Yeah, so I'll first share the file which has the question which we need to solve today. We started this already in the last lab. I told you many details about the finite difference method. So you have to solve this equation, partial differential equation using finite difference method. So you might have already, all of you might have already saved your codes, obviously. So you can start doing it again, opening the same codes. So what small change I did here, I tell you that if you are finding this initial condition difficult to implement in the beginning, then you can use this as initial condition. Rho x t naught is equal to rho naught is equal to 0.65, right? So this is the constant initial condition. I told you that the system or this differential equation will be supplemented with one initial condition and two boundary conditions. So that t naught default is 0, that's the 0 time. So this you can assume first as a constant, and then we'll later on think about this initial condition. And these are your boundary conditions. So I gave you few parameters last time. So you just open the MATLAB and start doing that and ask me if you do not have any information, right? Ma'am, can you please tell X1 and X2? X1 and X2, एक मिनट, मुझे भी भूल गया, मैंने अपने कोड में से देख के बताया था. मैं जब आपको ये फाइल शेयर करूंगी, जब आपको इसको लैब में यूज करना है एज एन एक्सपेरिमेंट, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी. इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, बट लेट मी जस्ट सी दैट राइट नाउ फ्रॉम माय कोड, क्योंकि ये बहुत जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है. वहाँ पे इट्स स्पेसिफिक वैल्यूज, यू नीड टू हैव द स्पेसिफिक वैल्यूज. Just wait for a few minutes, I'm telling you.
Wait a minute. Okay, so I'm going to tell you the value of these parameters. X1, X2 is what is 1000. DT is 0.002. Yeah, so what are the things you need? T naught is 0. बट वो theoretical है, you know that हमने इसको discretize किया गया है time को. So j equals to 1, the first time step is actually representing t naught equals to 0. It will go up to certain time, and similarly in the space you are starting from x1 equals to 0 and you are going from x2 equals to L. So I is 1 to L, where L is 1000. So I told you this last time probably that what matters is the grid points. क्योंकि पूरा लेंथ का रोड कुछ भी हो सकता है, so whatever be the length of the road, it can be say small l. Then we know हमें discretize करने के लिए उसको partition किया था अलग अलग intervals में. So what matters is these values for us, क्योंकि हमें इन्हीं पे computation कराना है. तो ये हमारी x values हैं. So this is represented by, so x1 equals to 0 means the starting point, this is say 0. So this is I equals to 1, and then we have the last point L, right? So you just say L is equal to 1000, where I will go from 1 to 1000. So that means x1 is representing I equals to 1 and x2 is representing I is equal to L, which is the last point. So the value of L. That means हमने 1000 points में उसको road की length को divide किया है. तो वो रोड का लेंथ एक्चुअल में कितना है, सो वो नहीं है. वी कैन कंप्यूट दैट बिकॉज आई विल गिव यू द स्पेसिंग आल्सो. आई विल गिव यू व्हाट इज द स्पेसिंग बिकॉज यू विल रिक्वायर, बिकॉज हमने लास्ट टाइम इसको डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट यूज किया था. सो यू विल रिक्वायर dx एंड dt. So I'm going to tell you that dt is 0.002, dx is 0.01, because ये step size है कि आपको I equals to 1 और I equals to 2 में x की वैल्यू क्या है. So that you will require, and you need rho max, this is 1, and you need vmax or the vf, free flow speed, that is also 1. And let me see what else you require. T is 2000 in the beginning. Let me go back there. Yeah, T is this capital T or small t, जो भी आपका notation है, जो final time तक हमें जाना है, that is 2000. Yeah, that's it. And I told you the relationship between speed density. V is vf 1 minus rho by rho max. So vf और rho max की वैल्यू आपको दे दी है. So v will be a function of rho. So जो जो initial condition आप rho के लिए लगाओगे वही v के लिए लगेगी. So there will be
2 इनिशियल कंडीशंस, ये मैं रिपीट ही कर रही हूँ, लास्ट टाइम बताया था, एक रो की इनिशियल कंडीशन होगी और वी की होगी, एंड देयर विल बी 4 बाउंड्री कंडीशंस. 2 boundary conditions will be for density and 2 boundary conditions will be for speed. So पहले तो आप 2 इनिशियल कंडीशन और 4 बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करोगे, और उनको डिफाइन करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखने के लिए हम x और t का फंक्शन दिखाते हैं, बट आई टोल्ड यू दिस लास्ट टाइम कि आपको उनको ij कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, बिकॉज दैट्स हाउ MATLAB हैज टू रिकॉग्नाइज इट. So once you define these 6 conditions, then you start your loop of execution, which will be a 2-dimensional grid. जो आपको इतनी values चाहिए. So this side you have j, this side you have I. So I is from 1 to L, j is from 1 to capital T. So ये आपका grid है, जिसमें हमारे पास ये boundary पता है, because this is the initial condition. For j equals to 1, we know all the values. For all j we know the left boundary, and for all times for all j we know the right boundary. तो जो मैंने डार्क किया है, लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री एंड द बॉटम लाइन मींस दैट इज द इनिशियल कंडीशन. सो ये 3 हमारे नोन है. अब इनको आपको लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है इन द कोड लैंग्वेज, एंड देन after that your loop will be executed. I told you the last time the main running formula, so I'm not going to do that again because we spent enough time last time on that. So you start finishing it, and then whosoever finishes it, let me know if the code gets executed. Yeah, an initial condition, वो मैं दोबारा से लिख देती हूँ. अभी के लिए इस initial condition की बजाय you just start with row x0 is a constant, और वो constant value मैं आपको दे रही हूँ 0.65. उसके बाद हम ये वाली initial condition को लेंगे. ये थोड़ी सी different है than constant. इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक डेंसिटी 0.65 है, उसके बाद डेंसिटी 0.4 है इनिशियली स्टार्टिंग, बट तो मींस इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस. स्पेस का फंक्शन हो गया ना x का, बट यहाँ पे दिस इज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट इनिशियल कंडीशन. सो यू फर्स्ट वर्क विद दिस वन, एंड बाउंड्री कंडीशंस आपके सामने लिखा ही हुआ है. सो टेक योर टाइम ऑल ऑफ यू एंड सॉल्व दिस वन. Yes. बाउंड्री कंडीशन में जो लेफ्ट वाला है उसमें मैम हमेशा 0 जो ये दिया होगा p of x1, t, हम ये लेके चलेंगे बाउंड्री कंडीशन. हाँ, दोबारा से पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम बाउंड्री कंडीशंस में हम क्या लेके चलेंगे रो की? हाँ, 2 गिवन है ना, एक लेफ्ट बाउंड्री पे, एक राइट बाउंड्री पे. राइट बाउंड्री पे तो मैं कौन सी लेके चलेंगे? यही 0.65 एंड 0.4. हाँ, यही वैल्यूज, ये मैंने चेंज नहीं की हैं, बाउंड्री कंडीशंस यही हैं. ओके हाँ, ओके मैम. हाँ, यस मैम वो जो आपने मेन फॉर्मूला बताया था उसमें जो आई जे की जगह हमें एक्स आई और टी आई ये सब नहीं लेना चाहिए था? वो आपके ऊपर है. जैसे मतलब तो फिर हम रो का फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे? मतलब नहीं, वो सिर्फ एक नोटेशन है. देखो वो सिर्फ एक नोटेशन है. इफ आई टेल यू समथिंग, एक मिनट, इट्स समथिंग लाइक, अब आप कह रहे हो इस पॉइंट पे, सपोज ये है आपका, सपोज ये पॉइंट है, ये है i इक्वल्स टू 3 और से j इक्वल्स टू 3. तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे, मीन्स थर्ड टाइम स्टेप पे और थर्ड स्पेस स्टेप पे आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, राइट? तो एक्चुअल में यहाँ पे अब i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 मीन्स x कितना है 0, क्योंकि आप लेफ्ट बाउंड्री पे ही हो. i equals to 2 means x is equal to dx. तो वो आप उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो ना, क्योंकि dx is this, right? डिस्टेंस, इंटरस्पेस, स्पेसिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो फिर i is equal to 3 means x is equal to 2 dx. 0 से आप कितना डिस्टेंस पे हो, मीन्स देखो 2 चीजें हैं. अब आपको आप रोड पे खड़े हो, आप एक मेजरिंग टेप ले लो कि आपको वहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट करना है, तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन पे यू आर 0, सो उसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट पोजीशन है. फिर हम इक्वल इंटरवल्स पे पार्टीशनिंग करते जाएंगे. सो
ये अब आपको तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी से मतलब है ना, अब आप उसको रो एट x इक्वल टू 0 लिखो या रो एट i इज इक्वल टू 1 लिखो, वो सिग्निफाई तो सेम ही चीज कर रहा है ना। आई यू गेटिंग दिस? ये सिर्फ एक कन्वीनियंट नोटेशन है। हम फाइंड ऑब्वियसली वो x का ही फंक्शन है, x का फंक्शन होना इज इक्विवेलेंट टू i का फंक्शन होना, बिकॉज यू सी आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू i माइनस 1 इंटू dx, तो i1 पे x 0 है, i2 पे x dx है, तो बेसिकली ये i की वैल्यूज जो हैं आप लिख रहे हो, तो इस रो एट i इज इक्वल टू 1 को मैं लिख रही हूँ से रो 1, ओके, i कॉमा j लिख रहे हैं ना, j तो टाइम के लिए है, सो इट्स रो 1 कॉमा j, दैट मीन्स टाइम है मेरे पास जो भी होगा पर्टिकुलर, और उसमें जो है i इज इक्वल टू 1 है, तो इस पॉइंट पे ये होगा रो 3 कॉमा 3, तो 3 is i is equal to 3, 3 is j is equal to 3. सेम मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रो एट 3 dx, सॉरी 2 dx, और टाइम में भी वैसे 2 dt. Are you getting this? x की वैल्यूज और t की एक्चुअल में उस टाइम पे स्पेस और टाइम के मैग्नीट्यूड्स क्या है वो भी लिख सकते हैं, और i और j भी लिख सकते हैं, बट मैम वो फिर वो आएंगे तो स्टोर दोनों सेम ही ना। आपकी इक्वेशन इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, वो तो नोटेशन है। देखो मुझे उसको सिर्फ एक जिस नाम से स्टोर करना है वो नाम मैंने मैट्रिक्स जैसा लिया है कि मुझे उसको ऐसे स्टोर कराना है, इस i में xi ही है, ये i इंटरप्रेट कर रहा है कि x इज इक्वल टू xi, तो वो आपकी इक्वेशन में ऑलरेडी दैट थिंग हैज बीन कंसिडर्ड, क्योंकि उसमें dx का फैक्टर आ रहा है और dt का फैक्टर आ रहा है, राइट? मैम वो कोड में एक एरर आ रहा है तो इसलिए पूछ रहा था उसमें जब रो को xi और ti लिख रहा हूँ मैं तब वो कह रहा है कि वो एरे के इंडिसेस नहीं है, मतलब आप शेयर स्क्रीन कर लो, देन वी कैन सी। ओके मैं वो परमिशन दे दूँ? हाँ हो गया, कर दिया मैंने, अलाउ कर दिया। अच्छा मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा ना, ठीक है। Yes. अच्छा चलो, यहाँ से भी कर सकते थे वैसे, एनीवेज यू कैन डू दैट। Can you see this one? यस आई कैन सी, सो वेयर इज द, ठीक है ये तो आपने लिख दिया dx dt, n लिख दिया, t लिख दिया। अच्छा भी आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया xt करके, ओके। मैम तो मुझे रो का फंक्शन एक मतलब मुझे रो में वो एरर आ रहा है कि मतलब रो एक फंक्शन को आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो देख लेते हैं, एक मिनट। आपने कहा है ये एरर है आपका लाइन 22 में, just go to line 22 रो xi comma 0, मैम वो इसे नहीं एरे वो मान तो मतलब नहीं वो तो 0 नहीं ना होता, इंडेक्स मैटलैब में 0 इंडेक्स नहीं होता ना, तो टाइम को 1 से स्टार्ट करो। आप अगर t भी लिख रहे हो उसको तो थ्योरेटिकली लिखने के लिए, या फिर यहाँ जैसे ऊपर t1 लिखा है ना आपने, t1 इज 0, इफ यू सी अबव इन द 10th लाइन और 11th लाइन, ये देखो आपकी 10th लाइन में आपने फर्स्ट टाइम को 0 बोला है, यही है ना इसका मतलब। यस मैम। हाँ, और x1 को आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो x1 को भी फिर 0 से ही स्टार्ट करोगे ना, जैसे आई वाज एक्सप्लेनिंग लेफ्ट बाउंड्री इज x इक्वल टू 0, 0 प्लस dx होता रहता है। अब आप नीचे जाना वहां पे ही, हाँ सो यहाँ पे फॉर i इक्वल्स टू 1 to n रो xi जो 22 लाइन में, यहाँ पे t1 लिखोगे ना, फिर t1 फर्स्ट टाइम 1 की बजाय t1, तब वो ले लेगा। आई थिंक इट शुड टेक, अच्छा नहीं बट t1 की वैल्यू भी 0 है ना, अच्छा एक बार करके देखो, बट आई थिंक इसमें भी एरर ही आएगा, इट शुड गिव यू एरर, एक बार रन करके देखना। हाँ वही, क्योंकि ये 0 टाइम को हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, इसको 1 टाइम लेना पड़ेगा। अब ऊपर टाइम को t1 को 1 कर दो, x1 को भी अच्छा फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने फिर वो ij के सेंस में कराया था कि
एक्स और टी थ्योरेटिकली 0 होते हैं, बट उनके जो इंडिसेस हैं आई और जे उनको हम 1 कह देते हैं कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे फिर दोनों चीजों को देखना, क्योंकि इसमें आप x को 1 ले रहे हो। चलो करके देखो इस बार इसको 1, t1 इज 1, x1 इज 1। फिर से एरर है, कहाँ पे है ये? मैं वो एरे के इंटीजर मतलब एरे के नहीं इंडिसेस वो तो एरे एरे कोई बोल रहा है, वो तो i इज इक्वल टू 1। t और x आपके कंप्यूट हुए हैं? इधर मुझे दिख रहा है t है, x भी है। हाँ तो वो तो आपका एक बार डिस्प्ले कराओगे t और x क्या है? कमांड विंडो में जाओ, कमांड विंडो में जाके कर दो। It's already executed ना, don't run it again. Command window में just go. भाई में हाँ चलो यहाँ एक्स और पे। टी ओ हाँ वो किया होगा उसने डिस्प्ले, व्हाट वो एरर आ मैं गया। वो आप कमांड विंडो में लिख, पहले राइट इन कमांड विंडो, स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है चलो, वो तो कंप्यूट तो कर रहा है, बट समथिंग एल्स इज देयर। एन क्या है आपका, कैपिटल एन? 1000 ओके, अभी दिखाना है नीचे। I for I is equal to 1 to t. Rho xi comma t1. x तो आपने ऊपर अच्छा डिफाइन कर दिया ना। ओके ओके आई गॉट इट। x देखो आपका x डेसिमल्स में यस मैम है ना? तो अब ये आपका जो लिखा है ना आपने रो xi, एक मिनट, I'll explain you here. एक मिनट, व्यू ऑप्शंस में नहीं आ रहा, आई कैन नॉट एनोटेट ऑन योर विंडो। चलो एनीवेज मैं आपको समझाती हूँ क्या गलती करो। आप शेयर स्क्रीन ऑफ कर दो अपना। या सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप ऐसे लिख रहे हो रो xi t1 या जो भी इसको ti लिख रहे हो, चलो एक बार t1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0.65। आप इसको इनिशियल कंडीशन दे रहे हो कि फर्स्ट टाइम पे तो t1 की वैल्यू तो वो 1 ले लेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये है xi1 इज 0.65। बट अब आप x की वैल्यूज देखो जो आपने दी हैं। आपने डिफाइन किया है x1 1 है, xi प्लस 1 आपका फॉर्मूला है इज xi प्लस dx, यही है ना? यही आपका यस फॉर्मूला, मैम या फिर ये भी हो सकता है x1 प्लस आई -1 इंटू डी एक्स। तो दो तरीके हैं, स्टार्टिंग से उसको मल्टीप्लायर देते रहो या ऐसे करते रहो, जैसे भी मीन यू आर कंप्यूटिंग x। तो आपका x क्या आएगा, आपका पहला x है 1, उसके बाद आएगा 1 प्लस डी एक्स, फिर आएगा 1 प्लस 2 डी एक्स, फिर आएगा 1 प्लस 3 डी एक्स, बिकॉज उतना उतना मूव करते जा रहे हो ना, 1 से लेकर डी एक्स, फिर डी एक्स, तो यहाँ तक 2 डी एक्स हो जाएगा, राइट? तो आपका डी एक्स जो है क्या है, फ्रैक्शन में है ना, 0.01 दिया है मैंने आपको। तो अब ये क्या है, रो, अब इसको यहाँ जब आप x1 पुट करेगा ये, तब तो ये 1,1 कर देगा जब i की वैल्यू 1 होगी। जैसे ही i2 होगा ये देखेगा रो x2,1, x2 is this 1.01, this does not make sense, this should be integer indices, ये मैट्रिक्स वे में डिफाइन करें ना, दिस इज समथिंग लाइक रो आई जे, तो ये इंटीजर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये वाली अप्रोच बताई थी, क्योंकि इसमें हम उनके एड्रेस से उनको कॉल करते हैं, हम उनकी एक उस पॉइंट पे एक्स चाहे आपका यही है,
बट उसको ये बोलने के बजाय मैं सिंपली 2 बोल रही हूँ। सिमिलरली जो इसके बाद आएगा 1.02, 1.01 में एक और 0.01 ऐड हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये हो जाएगी 1.02। तो इसको 1.02 में स्टोर कराने के बजाय मैं इसको 3 बोल रही हूँ, राइट? सो इट्स जस्ट द नेमिंग, इट्स जस्ट द इंडेक्सिंग, लेबलिंग, क्योंकि दैट इज कंपैटिबल विद अवर मैटलैब software, means obviously it's with any programming software, so your indices have to be integers, it cannot be like that. That is why आप इसको रो xi या tj की बजाय रो ij, better you just call them with their positions, not their value of x and t at those positions. Is it clear? ओके मैम। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसीलिए जहां जहां आपने एक्स आई टी जे लिखा है वहां वहां आई जे लिख दो, तो वो आई की वैल्यू थोड़ा सा आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एज आई सॉ योर कोड आपने पूरा लिख लिया है, बट ट्राई टू राइट इट इन दिस वे, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। वैसे आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर हमें वैल्यू स्टोर नहीं ना करानी होती तब हम उसको ओवरराइट कराते रहते हैं, फिर तो हमें फंक्शन भी नहीं बनाना पड़ता उसको, फिर तो हम रो ही लिखते हैं और वो अपने आप ओवरराइट करता होता है अगर हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू उठानी है। बट हमें हर स्पेस पॉइंट और हर टाइम पे वैल्यू चाहिए, इसलिए हम उनको स्टोर करा रहे हैं मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स के लिए हमें ये आई जे वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ओके मैम। या Ma'am, my code is not working. I'm not able to make out where the error is. Okay, you see, can you share your screen? Yes, ma'am, I can. हाँ, so you can share your screen. Okay, yeah, let me check that. You defined row. नहीं, error तो नहीं है कोई? I can't see any error on command window displayed. क्या आया था error? मैम एरर स्टार्टिंग में आया था, फिर मैंने चेंज किया था कुछ, अब तो शायद नहीं आ रहा। अच्छा, चलो देख लेते हैं। वो अब तक चलना बंद हो गया, आई डोंट नो क्या। नहीं चल रहा है, वो देखो, वो कमांड विंडो पे प्रॉम्प्ट आ रहा है ना। अच्छा, वर्कस्पेस कहाँ गया आपका? हाँ, चल तो रहा है कोड, वर्कस्पेस में है वेरिएबल्स आपके। मैम बट यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा था। नहीं नहीं, वो तो वो कुछ होगा, सेमीकोलन नहीं लगाया होगा तो डिस्प्ले करता है, अदरवाइज चलो मैं देख लेती हूँ इसके इन जनरल डिटेल। अच्छा, ये टाइम के लिए है, इनिशियल कंडीशन डिफाइन कर दी आपने, और पी ओके, ये आपने वो दे दिया। इसको एज अ वेक्टर नहीं लेगा ये, जो आपने लाइन 14 में लिया है, लाइन 14 में? हाँ जी मैम। तो हमें मैट्रिक्स नहीं बनाएगा? हाँ हाँ बनाएगा, बट ये डॉट डिवाइड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट इसने ऐसे ले लिया। एक बार v दिखाना अपना, यहाँ पे v डिस्प्ले कराओगे, जस्ट राइट v इन द कमांड विंडो, कमांड विंडो में लिख दो सीधा। जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद सीधा हम कमांड विंडो में वेरिएबल्स को देख सकते हैं। सारी स्पीड जीरोस, हाँ वो नहीं लिया उसने उसको, क्योंकि क्या चेंज करना है? डिवीजन के पहले डॉट आएगा। ओके मैम, जो लास्ट टाइम आपने हमें समझाया था, वो वेक्टर है ना। हम अब चलेगा? चलना तो चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इसको एरर भी देना चाहिए था, बट इसने एरर नहीं दिया। यहाँ भी होगा। ओके ओके, आपके ये फॉर लूप जो आपने दोनों डिफाइन किए हैं, मेन जो लूप्स हैं, यहाँ भी उसको v का फॉर्मूला देना पड़ेगा ना। ओके ओके मैम। v भी तो उसको हमेशा चाहिए ना, हर टाइम पे। ये तो इनिशियल और बाउंड्री तो आपने दे दी,
हाँ मैंने पहले लिखा था फिर मैंने हाँ हटा हाँ, दिया। नहीं नहीं, मैं इसको करती हूँ। कंटिन्यूसली चाहिए। और वी की बाउंड्री कंडीशन भी नहीं दी आपने ऊपर। हम वी की बाउंड्री कंडीशन तो ये और ये दी है। नहीं नहीं, वी की वो तो इनिशियल है, देखो 13 और 14 आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं, क्योंकि उसमें टाइम को आपने 1 डाला है। 15 और 16 आपकी डेंसिटी की बाउंड्री कंडीशंस है, आपने 1 और n पे डिफाइन की है। सिमिलरली 17 पे v की लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन है, v की n पे देनी पड़ेगी। जैसे p की 2 है ना, डेंसिटी की 2 है, स्पीड की भी दोनों होगी। ओके ओके ठीक है मैम, ठीक है मैम। हाँ, तो ये चेंजेस कर लो। मैम हाँ यस। मैम जो हम ये डॉट वाला डिवाइड कर रहे हैं, तो मैम लास्ट टाइम हमारी जो एरर आई थी उसमें तो ये था ना कि डिवाइड में हमारा वेक्टर था। डिवाइड से पहले ऊपर न्यूमरेटर में। मैम पहले जब हमने किया था एक्सपेरिमेंट 1 में, उसमें मैम डिवाइड के अंदर हमारा वेक्टर था और इसमें हमारा न्यूमरेटर में वेक्टर है। तो मैम अगर डॉट ना लगाए तो भी चलेगा नहीं मैम? पता नहीं, वैसे मुझे लगता है कि नहीं, चल भी सकता है, बट तब तो एरर भी आ गया था। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि इसका एरर नहीं आया, शायद ये ऐसे ही चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो एक कांस्टेंट से ही डिवाइड कर रहे हैं ना पूरे वेक्टर को। तो मैम नहीं, बट 1 माइनस भी तो है। चलो करके देख लो इसको, मैम मैं टेस्ट एक और चीज पूछनी है मैम। हम्म मैम जैसे कि जो ये हमारा 0.65 है और ये भी एक हमारे पास है ना, तो मैम ये हमारा टाइम टाइम के लिए और ये हमारा स्पेस के लिए है इसके लिए। हाँ, है ना। तो मैम दोनों ही हमारे अगर अगर सपोज हमारा जैसे स्पेस वाला अगर हमारा 0 पॉइंट कुछ और हो जाता, करके देखेंगे, 0.7। करेंगे अभी सारी वेरिएशन करके देखेंगे। अभी तो हम एक बार कर रहे हैं कि चलो एक बार रन हो जाए हमारा कोड, देन विल प्ले विद दीज पैरामीटर्स। ओके मैम। राइट। मैम अब ठीक है, अब चलना चाहिए। वी आपने नीचे भी दे दिया ना, वी। हाँ नहीं, जो आपने 21 लाइन पे लिखा है वहां तो डॉट डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक एक वैल्यू मैट्रिक्स का कंप्यूट कर रहे हैं ना, यहाँ पे सीधे वेक्टर नहीं कंप्यूट हो रहा। बट ऊपर वेक्टर था वो, तो लेट्स सी, मतलब चलना चाहिए। इफ यू रन दिस वन, अभी आप वी डिस्प्ले कराओगे? अब भी यही आ रहा है। नहीं, कुछ तो वैल्यूज आई हैं, वो बाउंड्रीज पे आई हैं, आई कैन सी दैट। अच्छा चलो एक बारी यहाँ पे कमांड करो टाइप कमांड विंडो में। rest of the people can also see because this is essentially what we have to do। जब हमारे पास डेटा जो होता है, एक मिनट, लेट मी राइट हियर। जब हमारे पास जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल किया था या SIR मॉडल किया था, उसमें जो हमारी आउटपुट्स थी, जैसे ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड, रिकवर्ड, वो हमारे आ रहे थे वेक्टर्स, राइट। और हम उनको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट कर रहे थे कि ससेप्टेबल ऐसा आ गया, इन्फेक्टेड ऐसे हो गया, और जो रिकवर्ड है ऐसे हो गया। सो वी नो देयर वर द कर्व्स कमिंग because they were vectors, so we could plot them in a 2-dimensional plane। on this side we have the population, 3 graphs, वो तो curve 3 जितनी मर्जी plot कर लो, but point is हम 2-dimensional plane use कर रहे थे because they were function of one variable time only, and because that was a ordinary differential equations। इसमें हमारे पास क्या है, we have a PDE, partial differential equation। तो हमारा जो वेरिएबल है डेंसिटी, जिसको हम मेन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड t। तो इसकी प्लॉटिंग जो है 2-डायमेंशनल प्लेन में नहीं होगी, बिकॉज x और t will take up 2 x's, right? You need a 3-dimensional plot to see this, because it's having 3 variables, 1 dependent and 2 independent। so उसके लिए प्लॉट की कमांड नहीं चलती है। फॉर दैट वी हैव द कमांड mesh और surf। 2 कमांड्स होती हैं, either you use mesh और surf, और इसको सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है mesh row, जो भी आपने रो का सिंबल यूज किया है, नोटेशन यूज किया है, और surf row। so you just Ishangi type this on command window, so that will show you how the plot looks like। आपने क्या यूज किया है, p यूज किया ना आपने, हाँ। so p is you can see in the workspace, you can see here P is a matrix 1000 क्रॉस 2001, क्योंकि उस 1000 स्पेस के पॉइंट्स हैं और 2000 टाइम के पॉइंट्स हैं, राइट।
तो वो मेट्रिक्स है, तो उसको प्लॉट कराने के लिए भी यूज दिस. कैन यू शेयर दैट अगेन? वो कर्व हमें दिखा नहीं अभी फिगर. ओके, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. इसको थोड़ा आप रोटेट कर सकते हो यहाँ पे. इसको जस्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो रोटेट हो जाएगा थोड़ा सा. हाँ, लेफ्ट दूसरी तरफ. राइट. सो इसको फिर हम रीड कर सकते हैं बाद में कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यू कैन सी. ओके ओके, होल्ड ऑन ओवर हियर. इसी पोजीशन पे इसको होल्ड ऑन करोगे तो आई विल एक्सप्लेन. वैसे ये सही नहीं आ रहा है बट मैं बता देती हूँ कि क्या है. ये स्पेस है. अब आपको ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अच्छा यहाँ पे स्पेस कहाँ है, टाइम कहाँ है, डेंसिटी कहाँ है. तो ये 0 to 2000 यू कैन सी. तो ये टाइम का एक्सिस है, ये स्पेस का एक्सिस है, बिकॉज ये 1000 पॉइंट्स हैं, और ये डेंसिटी है. तो डेंसिटी देखो वो मैक्सिमम पे जा रहा है, 1 पे इट हैज बीन अचीव्ड. सो इट्स अ वेरी हाईली dense situation is there, but we'll figure out whether this is correct or not. But this is the interpretation which you have to see from the figure. और लेफ्ट पे यू कैन सी स्टार्टिंग में हमने 0 से 2000 सॉरी x इक्वल टू 0 पे जो हमारा, और यू कैन से द कंप्लीट, उस पे हमने वैल्यू दिया था इनिशियल टाइम पे 0.65. so that's why this value is 0.65. अच्छा, वो इधर से नहीं नजर आएगा, you have to rotate it. अच्छा, इसको बंद कर दो ईशांगी फिगर को. what I am trying to convey is, पहले तो आप सब लोग अपना कोड जो है सही करो, so that it should get executed, it should be error free, and then we'll talk about it. So meanwhile what you can do ईशांगी, आप initial condition को change करो, because ये हमने जो initial condition मैंने आपको दी थी ये trivial है. ट्रिवियल का मतलब होता है कि ये जो LWR मॉडल है ये ना डिस्टर्बेंसेस अपने आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. अगर आप इसको स्मूथ डेंसिटी प्रोफाइल दोगे तो उसने स्मूथ ही प्रोड्यूस करना है, बिकॉज उसका एक अजम्पशन है कि जो स्पीड है वो सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है. तो अगर स्टार्टिंग में डेंसिटी आपने कांस्टेंट दे दी तो स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट ही रहेगी. तो हेंस दैट साइकिल गोज ऑन. स्पीड में वेरिएशंस आते ही नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियली जो डेंसिटी दिया था वो यूनिफॉर्म दिया था. ये इस मॉडल का अजम्पशन है. ये जब ये वाली कंडीशन इनकॉर्पोरेट करता है ना, दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ रो, और वो जो फंक्शन टाइप हम लेते हैं, तो इट्स अंडरलाइंग अजम्पशन ओवर देयर कि वो कंटिन्यूसली उस पर डिपेंड करता है. तो अगर आपके डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस इट्स वेरी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, सो वेलोसिटी भी वही, स्पीड भी वही रहेगी, और जस्ट टाइम के साथ उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस आएंगे, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिजल्ट दिखाएगा. इसलिए आई वांटेड यू कि आप पहले ये वाली इनिशियल कंडीशन के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग हैपनिंग. दैट्स व्हाई वो कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे हम उस फिगर को देख के. तो यू चेंज द इनिशियल कंडीशन टू द अदर वन. आप ईशांगी, यू कैन स्टॉप शेयर. Yeah, so you can work on this initial condition, rather this one. मैं आपको x नॉट बता देती हूँ. जैसे आपने 1 लिया था, L लिया था, ये आपका I इक्वल्स टू 1 है, ये I इक्वल्स टू L है. इसको मैंने x1 बोला था, इसको मैंने x2 बोला था. तो x नॉट इज समवेयर इन बिटवीन. कि दैट मीन्स ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस वन अप. Okay, so what I was explaining is, suppose this is the section of the road, this is x1, this is x2, so somewhere we have x naught. Ki x, when x is less than x naught, obviously within this boundary, within this section of road, so then density is 0.65. But when x is greater than equals to x naught, then density is something else, 0.4. So this will be a profile like that. So we have a left boundary at a higher, with a higher density, and right boundary at a lower density, and the value is changing somewhere in between. So this you can imagine is as a signal, a traffic signal is there. Suppose there is a red light, right? Suppose there is a red light, and before that red light, the people get stacked up in queues because all of them are waiting for the light to turn green. तो यहाँ पे density बढ़ जाती है, right? और उसके आगे रोड हमेशा हमें
ऑलमोस्ट एम्प्टी मिलता है. थोड़े से लोग हो गए जिन्होंने अभी अभी ग्रीन लाइट क्रॉस किया एंड सडनली द लाइट गोज रेड. दिस इनिशियल कंडीशन इज लाइक योर रियल लाइफ example of that scenario कि okay from that point you want to simulate कि starting में ये density conditions थी. तो कई बार हमें पता है अगर कहीं किसी जगह पे रेड लाइट इतनी नॉन सिंक्रोनाइजेशन में हो ग्रीन लाइट के, I don't know you know this or not, but this Thapar Chowk, they had sometimes few months back they changed the timings of this red and green light. You know how much time the light would stay red or how much time. So I don't know what they did, but it started creating traffic jams more usual. I don't know whether you have observed it or not. यस मैम वो जो अपना था एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया था, ग्रीन लाइट की टाइमिंग बहुत कम कर दी थी. हाँ, तो अराउंड 2 मिनट्स कर दिया था रेड लाइट का. हाँ, तो वही बिकॉज देयर वाज नॉट अ चेंज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट. उससे पहले मैंने कभी नहीं ऑब्जर्व किया कि वहां पे कभी जाम लगा हो ट्रैफिक लाइट की वजह से. इतना मतलब होता था कोऑर्डिनेशन की ठीक है सिग्निफिकेंट पीपल जॉइंड एंड देन वो क्लियर हो जाता था. तो माइनर डिस्टर्बेंस कैन क्रिएट एंड लीड टू ट्रैफिक जैम्स. तो यही होता है जो इनिशियल डेंसिटी प्रोफाइल है आपका, अगर वो कुछ उसमें इतना इफेक्ट है कि वो आपके लॉन्ग टर्म ट्रैफिक को इफेक्ट कर सकता है, सो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू अ जैम. इसीलिए जब हमें LWR मॉडल से जब सॉल्यूशंस देखने होते हैं तो हम स्टार्टिंग की डेंसिटी प्रोफाइल कुछ प्रॉब्लमैटिक लेते हैं. अगर हम यूनिफॉर्म ही ले लेंगे तो उसने यूनिफॉर्म ही दिखानी है, उसने वेरिएशंस नहीं लेके आनी. इसीलिए इसमें ऐसी इनिशियल कंडीशन से टेस्ट किया जाता है. इनको हम Riemann initial conditions बोलते हैं. That's the name of the scientist. But anyways, that does not matter. But what matters is you have to have a density profile with disturbances. आप ऐसा density profile भी ले सकते हो. You can have a density profile like that. Whatever, because it has to be a function of space. So there are different examples. अगर आप डिटेल में इनको स्टडी करो तो बहुत अलग अलग तरह के डेंसिटी प्रोफाइल से हम एवोल्यूशन देख सकते हैं. तो स्टार्टिंग में आपको ये डेंसिटी प्रोफाइल दिखेगा, उसके बाद लेट योर मॉडल एग्जीक्यूट जो भी आपका सिमुलेशन है एंड देन यू सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सो दैट्स वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस इनिशियल कंडीशन. तो x नॉट अभी क्या लेना है, तो लेट्स टेक इट एग्जैक्टली इन द मिडल. जैसे ये हमने i इक्वल्स टू 1 लिया है, ये हमने i इज इक्वल टू 1000 लिया है, सो लेट्स टेक इट i इज इक्वल टू 500. बाद में आप इसमें फिर खुद से वेरिएशन करके देख सकते हो कि ठीक है 500 नहीं लेते हैं 250 ले लेते हैं. समवेयर हमें ये एक पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस प्लेस करना है. सो just do it arbitrarily, but for the first time just do it at i equals to 500. तो हमने मिडल में उसको प्लेस किया है. 500 और 501, 502, 499 उनसे बिल्कुल वेरिएशन नहीं होगा. When you close it, place it very close to x1 or very close to x2, then there can be significant differences in the answer. बट माइनर वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लॉन्ग टाइम के लिए सिस्टम को देख रहे हैं, राइट. सो दोज हु हैव डन द फर्स्ट पार्ट, तो प्लॉट उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे हमें जो इंटरप्रिटेशन समझनी है वो समझ आएगी नहीं, एज आई जस्ट टोल्ड यू. तो यू डू विद दिस टाइप ऑफ इनिशियल कंडीशन. सो दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न नाउ कि अब इसको कैसे इनपुट कराना है. पहले तो आपने सीधा लिख दिया ना रो 1 टाइम्स सॉरी इनिशियल है ना ये, तो रो दिस 1 इज इक्वल टू जो था पहले मैंने आपको कांस्टेंट दिया था कि पूरे x स्पेस के लिए और टाइम 1 के लिए j इक्वल्स टू 1 के लिए कांस्टेंट है. अब बस ये नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह पे आपको स्प्लिट करके लिखनी है. तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए 0.65 है, बाकी वैल्यूज के लिए डेंसिटी 0.4 है. ये सिर्फ इनिशियल कंडीशन में चेंज होना है, बाकी आपका कोड सेम रहेगा. बाउंड्री कंडीशंस में कुछ चेंज नहीं हुआ है और ऑब्वियसली इक्वेशन में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है. सो नथिंग एल्स इज गोइंग टू बी चेंज्ड. यू जस्ट introduce this change in the initial conditions, right? If anybody has any doubt then please ask, and I want all of you to please finish this code today because otherwise it will take much time, because हमने almost कर लिया था last time. तो बीच में फिर भी किसी को डाउट आता है तो आप पूछ लो, but we have to finish this off. मैम तो हम यहाँ पे रो ऑफ कोलन कॉमा 1 की जगह हम x नॉट प्लस dx लिखेंगे नहीं, या कैसे? अब मैंने वही तो अभी ट्रांसलेट किया था कि आपको x के फॉर्म में लिखना नहीं है, बस इतना क्लियर है. आपको लिखना i की फॉर्म में ही है.
ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, देखो ये जो कॉलन है ये डिपिक्ट कर रहा है कि I इज इक्वल टू 1 to L, यही डिपिक्ट कर रहा है ना। ये कॉलन लिखने का मतलब है सारी वैल्यूज के लिए I की ऐसे, अगर जिन्होंने फॉर लूप लगाया है तो उन्होंने ऐसे लगाया है, फॉर I इज इक्वल टू 1 to L, रो I, 1 इज दिस। ओके, अब ये स्प्लिट हो जाएगा I के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, 500 पे स्प्लिटिंग है, दो वैल्यूज बन जाएंगी, I यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.65 है और I की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 0.4 है, तो x के फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, split it in terms of I only, that you have to see how will you incorporate it, it's not very difficult. मैम Yes, मैम एक्चुअली मेरे को ना कंफ्यूजन है एक चीज में मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? yes, मैम स्क्रीन विजिबल है ना, स्प्लिट में है मैम? हाँ, yes I can see that. मैम हमारे पास जो ये कंडीशन थी P, जो ये वाली थी, ये P रो फ्रॉम ऑल सभी रोज के लिए और पेस्ट कॉलम के लिए 0.65 ठीक है ना, तो मैम ये हमारा ये सिग्निफाई कर रहा है ना सारा, हाँ टाइम, या ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम और ऑल रोज सारी, हाँ ऑल रोज ऑल रोज, या है ना मैम। तो मैम जो ये लाइन होगी P n से लेके मतलब जो nth रो होगी उसमें सारे 0.40 हो जाए, सारे कॉलम्स, हाँ सारे कॉलम nth रो में, तो मैम जो ये सारा कॉलम होगा ये सारा 0.40 हो जाएगा। तो मैम जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है इसमें वैल्यू क्या होगी मैम? इसमें 0.65 आएगा, 0.40 आएगा? I know, that's why if you look at मैम तभी वहां पे वो 0.40 दिया हुआ है। I know, actually वो इसलिए दिया हुआ है, you pointed it right, because there should be matching, right? हम Yes, उसको दो चीजें नहीं बता सकते, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस में कहीं तो इंटरसेक्शन होता है ना, तो वो यही पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, और इवन दूसरी तरफ भी वो फर्स्ट वाला इनिशियल में भी यहाँ पे भी हो जाना था लेकिन वो सेम आ गया। हाँ, इसीलिए मैंने सेम दिया था कि एटलीस्ट आपको वो समझ आ जाए कि ठीक है एक तरफ से है, इसीलिए मैंने कहा कि वो जो आउटपुट आ रहा है शांगी ने शो किया था वो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो हम जो बताना चाह रहे हैं वो ऐसे नहीं, इसीलिए इट डज नॉट वर्क विद कांस्टेंट इनिशियल कंडीशन बेसिकली, क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशंस पे दोनों बाउंड्रीज पे अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं बट इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट दे रहे हैं, तो वो मिसमैच होता है। बट आपका कोड, बिकॉज दैट प्रोग्राम जस्ट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, तो उसने लेटेस्ट वाला उठा लेना है। मान लो पहले आपने उस पे 0.65 डिफाइन कर दिया, बाद में आपने बाउंड्री कंडीशन डिफाइन किया और वहां पे 0.4 है, तो उसने 0.4 से ही स्टार्ट करना है, राइट? इट विल पिक सम वैल्यू बट इट डज नॉट अंडरस्टैंड द ऑब्वियसली द रियल प्रॉब्लम, तो वो तो मैथमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, उसने उसको एरर नहीं दिखाना। ये मतलब में है, यू नो दैट, इनफैक्ट आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। आप एक वेरिएबल को डिफाइन करो, उसको फिर से डिफाइन कर दो, तो उसने उसके लेटेस्ट वाली वैल्यू पिक करना है, वो ओवरराइट कर देता है। तो सेम इज हियर, वो इसको 0.4 लेके सॉल्व कर रहा है, बट दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड कि वो मीनिंगलेस है, बिकॉज देयर इज अ कंट्रोवर्सी, देयर इज अ कंफ्यूजन कि वो होगा कि वो होगा, इसलिए मैंने एटलीस्ट इनिशियल कंडीशन एक तरफ मैच करा दी थी, दूसरी तरफ नहीं करेगी। आप इसको प्लॉट करके देखो, यू विल सी द मिसमैच, आपको दिखेगा बाउंड्री पे सडनली वैल्यू डाउन होगी, तो होनी नहीं चाहिए। तो मैम इसकी वजह से मैम वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे ना? हाँ, वो ऑब्वियसली, इसीलिए वो मैंने कहा था वो फिजिकली रियल फिनोमेना के लिए वो मीनिंगलेस चीज है, वो वैलिड नहीं है, वो सिर्फ मैथमेटिकली देखने के लिए कि हमें चलो कुछ तो वैल्यू देना है तो दे देते हैं, बट दैट डज नॉट मेक सेंस। दैट्स व्हाई आई गेव यू द अनदर टाइप ऑफ इनिशियल कंडीशन जिसमें इट मेक सेंस, क्योंकि उसमें देखो लेफ्ट बाउंड्री पे और राइट बाउंड्री पे अलग अलग है, राइट? यू नो, लेफ्ट बाउंड्री पे यू हैव द 0.65, हाँ, और राइट 0.40, एंड इफ यू लुक एट द इनिशियल कंडीशन जो मैंने अभी डिफाइन किया है कि मिडल ऑफ द रोड पे अलग है, राइट? मिडल में चेंज हो जाती है, जैसे अभी इनिशियल कंडीशन भी फिर मैंने वैसे दे दी ना कि स्टार्ट हो रहे 0.65 से, कहीं पे बदल जाते हैं 0.4, तो इससे क्या होगा, लेफ्ट बाउंड्री पे भी मैच कर जाएगा 0.65 से और राइट बाउंड्री पे भी मैच कर जाएगा वो 0.4 से, राइट? इसीलिए वो सेम ही वैल्यूज दी है मैंने।
क्योंकि वो मिसमैच नहीं हो। हाँ, बाकी आप लॉन्ग रन में देखोगे कि बाउंड्री कंडीशंस का सिस्टम पे ज्यादा फर्क पड़ता है, इनिशियल कंडीशन का, प्रोफाइल का फर्क पड़ता है, बट ये वैल्यू से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 0.65 लेने की बजाय 0.63, 0.64 इतना भी ले लोगे, सो इट विल नॉट मैटर। बट क्योंकि हमें जो एक्चुअल में फिगर में देखना है वो हमें इंटीरियर को देखना है, बाउंड्री इफेक्ट्स, क्योंकि बाउंड्रीज पे हमेशा एरर्स जरूर होते हैं, बिकॉज कभी भी इतनी रियल लाइफ में इतनी शार्प वैल्यूज होती नहीं है, तो इसलिए वो इग्नोर ही करना होता है। दीज आर जस्ट फॉर अवर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स, कि उसके बिना सॉल्व नहीं होगा वो सिस्टम, ठीक है। बट उसको सेम बनाना ही है, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज इट कैन गो रॉन्ग। मैम बीच में कोई भी पॉइंट ले लें अपनी तरफ से। हाँ, मैंने Maximum. जैसे 500 बोला है, तो आप कहीं भी ले लो, मिडल ऑफ द रोड, जैसे मैंने बता दिया आपको। ओके मैम। हाँ, या मैम स्टॉप शेयर कर दूं? हाँ हाँ, आप कर दीजिए। Yes, Sumit is asking right formulas for graph. Okay, plotting. So the plotting formula, I'll tell you. Yeah, so this was mesh. Row means जो भी आपने use किया है, और surf भी है। mesh में you will see the difference between both of them. Basically एक ही चीज है, interpretation same है। mesh में वो आपको grids के साथ दिखाएगा, means you can see, दोनों plot करके देखोगे, you will understand the difference। और आप सिमिलरली स्पीड को भी देख सकते हो, बट हमें इंटरप्रिटेशन ज्यादा रो का करना होता है डेंसिटी से, क्योंकि हमें ये देखना होता है लो डेंसिटी कहाँ पे है, हाई डेंसिटी कहाँ पे है, तो हमें इसका इंटरप्रिटेशन देखना होता है। स्पीड्स आर जस्ट काइंड ऑफ यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रो। तो आप देख सकते हो, क्योंकि स्पीड्स भी कंप्यूट हो रही हैं, तो आप मेश भी कर सकते हो, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई वुड से। एंड इफ यू सक्सेसफुली डू इट, व्हाट यू कैन डू, आप क्यू भी कंप्यूट करा सकते हो, राइट। in your code you make this change, you add this a new thing, क्योंकि आपके पास रो तो है ही सारे, v भी हैं सारे, तो आप q कंप्यूट करा सकते हो, राइट। so q is going to be रो into v, बट ये एज अ मैट्रिक्स नहीं कराना, ये नहीं कि पहले मैट्रिसेस कंप्यूट करा, क्योंकि दैट विल बी एंटायरली अ डिफरेंट सेंस। रो और वी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो क्यू नहीं होगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। इनको आपको ऐसे ही कराना पड़ेगा, इनसाइड द लूप, क्यू आई जे इज रो आई जे इनटू वी आई जे, क्योंकि रो और वी तो आप कंटिन्यूसली लूप में कैलकुलेट कर ही रहे हो, सो एड जस्ट दिस एडिशनल लाइन, तो उससे आपका क्यू भी आ जाएगा। बट क्यू की भी आपको इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस देनी पड़ेंगी फिर से, वो चाहे आप बाद में दे दो, क्योंकि उसको यूज नहीं करना है, बट कंप्लीशन के लिए उसको चाहिए। एनीवेज लेट्स कीप दैट ऑप्शनल, वो बाद में कर सकते हो, पहले आप उसी को पूरा करो। एंड एनीबडी हु इज गेटिंग अ ग्राफ फॉर mesh of row can share this screen, and then we can have the interpretation. एक्सक्यूज मैम। Yes. मैम वो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ कुछ, मतलब लाइक कोड में एरर। Yes, please share. आपको विजिबल है? Yes, I can see that. आप ये मैंने उसमें लाइक डिवाइड तो कर दिया, लाइक 500 के उस पे वैल्यूज चेंज किया, बट लाइक आगे one thing, ठीक है, चलो वो ओवरराइट कर देगा। जैसे आप 1 to 500 ले रहे हो ना, तो 501 से 1 से ले लो। हाँ, हाँ इस पे वैसे फर्क नहीं पड़ता, वो एज आई सेड ओवरराइट कर देगा, वो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाएगा, बट मैम वो एक्चुअली जीरोस आउटपुट आ रहे हैं, मतलब मेरे। ओके, तो मैम आपको एक बार कोड दिखाना था इसलिए। देख लेते हैं। और बाउंड्री, अच्छा वो तो वैसे ही है ना, बाउंड्री कंडीशंस। यस मैम। वी भी वैसे ही है, या राइट।
और P जो है, अच्छा इक्वेशन तो सही ही होगी, चलो मतलब वो तो लास्ट टाइम शायद हमने कर लिया था वेरीफाई, देख लेते हैं रन करके दोबारा से। हुआ नहीं, ऑनलाइन शायद इसको ना आई थिंक टाइम लगता जिस फॉर्म में थोड़ा अटक रहा है है। मैम। हाँ पुराने वाला मेरा एक आउटपुट होगा, क्वेश्चन है। ये आ रहा था पुराना वाला, लाइक ये रहा मेरा जब रन किया था। तो क्या है, स्पीड्स हैं कि हम P जीरोस आ रहे हैं डेंसिटी है? आपका इधर मैम। रन हुआ है ना, आप फिर से इधर दिखाना, वेरिएबल स्पेस वर्क स्पेस में P पे क्लिक करना, ओके डबल क्लिक ऑन दिस। हाँ तो ये वेरिएबल विंडो खुल जाएगा। ईशांगी जस्ट होल्ड ऑन, डबल क्लिक किया है मैम, आई डोंट नो। अच्छा कोई बात नहीं, आपका कोड दोबारा से देख लेते हैं। एक मिनट वेट, आई डोंट नो मैम, इधर थोड़ा आई गेस नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या। हाँ कोई बात नहीं, नहीं एक बार अच्छा आप कमांड विंडो पे जाना यस मैम। और यहाँ पे अच्छा वो तो वैसे ले ही लेगा क्योंकि बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन जो हमने मैन्युअली डिफाइन करी है वो तो है ही है। यस एक बार मैम। लिखना P2 चला गया। मैम एक बार रीशेयर करता हूँ, हाँ इसको एडजस्ट करता ये हाँ yes Ishangi, you were asking something. Ma'am, he has taken x naught to be 500. So, is that an assumption or you told something about it? X नॉट, हाँ मैंने I इक्वल्स टू 500 बोला था ना, I मतलब वही X नॉट, Okay, मतलब okay, वो ma'am. कैसे लिखा है आपने, मतलब I की सेंस में लिखना है, वो तो थ्योरेटिकली लिखने के लिए X नॉट मतलब X नॉट इज समथिंग, इज अ पोजीशन समवेयर बिटवीन द X1 एंड X2। सो I की सेंस में हम लिख रहे हैं तो 1 to 1000 है, तो मिडल में ले लिया मैंने, आपको कहीं भी ले लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको। अब एक बार किसी का ग्राफ सही आ जाए देन आई कैन टेल यू ऑल द थिंग्स अबाउट इट। Okay, ma'am. इसके मैम। मैम ये अब चल रहा है। हाँ बट इसमें तो यस मैम, जीरोस आ रहे हैं। सारे ही जीरो आ रहे हैं ना, बट दैट मीन्स देखो आपके जो हमने बाउंड्री या इनिशियल कंडीशंस डिफाइन की वो भी नहीं उसने उठाई, क्योंकि एटलीस्ट बाउंड्री पे तो हमने बताया ही है ना कि 1 से लेकर 500 तक उसको यस मैम। 0.5 उठाना है। सो समथिंग इज रॉन्ग। मैम आप एक बार इनिशियल कंडीशन सही है तो मैं एक बार ये वाली इक्वेशंस वापस एक बार चेक कर लेता हूँ, मे बी गलत यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। नहीं नहीं बट फिर भी वही मैं अभी वही बता रही हूँ आपको कि उतना तो होना हाँ ही यस मैम। चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा मैम, यहाँ पे डिफाइन जो हुआ है राइट। एक बारी आपने ऊपर देखा ना CLC क्लियर ऑल लिखा है कोड में आपने, वैसे तो कर ही दिया होगा उसने, इरेज पुराना डाटा तो नहीं लग रहा है उसमें। कोड के ऊपर हैव यू रिटन इन द बिगनिंग CLC क्लियर ऑल? मैम यहाँ पे कर दिया मैम क्लियर, इसमें क्या लूंगा मैम, कोड में। ऊपर लिख दो एक बार। हाँ वो क्या होता है ओके कई मैम। बार उसको पुराने वर्क स्पेस में से वो वैल्यूज उठा लेता है, नई बार रन नहीं होता है वही दिखा देता है। नहीं आया ना कुछ भी। नो
I mean initial conditions तो like, ये वाला तो आना ही चाहिए अब तो जैसे हाँ ये ये भी नहीं यहाँ आ रहा तो इसलिए ओके आपका जे और आई, हाँ आपका देखो लूप तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि इफ यू लुक एट द वर्क स्पेस तो वो yes जे ma'am और आई की कोई वैल्यूज नहीं ना दिखा रहा वर्क स्पेस में। नहीं तो yes वो ma'am जे और आई की वैल्यूज दिखाता है ना कि इतने तक हमने आइटरेशन कर लिया है। तो yes वो ma'am तो लूप के एग्जीक्यूशन तक तो पहुंच ही नहीं रहा, बट ये है कि वार्निंग भी नहीं दे रहा और रन भी नहीं हो रहा। कुछ टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं है। मैम इसे पूरा रन होने दूं जैसे लाइक मैं इसको स्टॉप कर दिया था टर्मिनेट कर दिया था ये जीरो चल रहे थे हाँ नहीं करो ना, अभी एक बार रन होने दो इसको। ओके ओके रन हो रहा है अभी। हाँ अच्छा अभी हो रहा है, लेट इट बी। अभी लेट्स सी, जस्ट वेट फॉर इट। ओके एक्चुअली क्या होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सभी स्टेटमेंट्स को ना हम सेमी कॉलन से क्लोज इसीलिए करते हैं, यस मैम कर दूंगा इसमें क्योंकि ये ना क्या नहीं प्रिंटिंग में बहुत टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि उसको दो काम करने पड़ते हैं ना, फिर प्रिंट भी करना है साथ साथ, तो वो दैट एड्स टू द कंप्यूटेशनल टाइम। मैम वो मैटलैब में पाइथन की वजह से वो फिर सेमीकोलन लगाने की आदत ओके ओके। हाँ मतलब ये एरर नहीं होता है, ये जस्ट वार्निंग यस मैम की, वो तो लाइक यस बट लेट इट रन, अभी भी चल ही रहा है ये आपका। ये ऑनलाइन क्या कुछ स्लो चलता है? मींस यस मैम मैटलैब ऑनलाइन क्या मैटलैब स्लो चलता है? बिकॉज अदरवाइज इट शुड नॉट टेक मच टाइम, कोड तो बहुत जल्दी। मैम अब एक बार मैंने जो सेमीकोलन लगा दिया टर्मिनेट करके एक बार कर देता हूँ फिर से हाँ देखो, बट क्योंकि अभी तो लूप पे वो पहुंचा ही नहीं है। एक बार करना टर्मिनेट। टर्मिनेट कर दिया एक बार ये वाला इसमें करके करता हूँ सेमीकोलन से लगा दिया ना मैंने अब आई है वो स्टार्टिंग में आई 0.65 पे चलेगी हाँ वो ये बाद में नहीं चलता, वो आपका लूप मैम पिक कर देता। इसमें मैम जो ये कोड है इसमें 22nd लाइन है जो सी हम्म। मैम इसमें मैं जो वेलोसिटी हम अपडेट कर रहे हैं बी या यस मैम तो मैम ये तो मैम जब पहली लूप चलेगी पहले से ही अपडेटेड होगी, ये हमें बाद में नहीं अपडेट करनी पड़ेगी वेलोसिटी। नहीं, देखो जब ये आई इसमें टू पुट होगा और वन होगा तो उसके तो पास, वो तो हमने पहले से ही दिया हुआ है। अच्छा अच्छा उसके पास पी टू वन उसके पास नहीं है ना। यस मैम बी उसके बाद मैम हाँ यस मैम 2,2 वाली लाइन से कुछ नहीं है उसके पास हाँ टू जब को IB2 नहीं और नहीं JB2 हो। नहीं नहीं, बट आप ये देखो ना, जब जे को वन सब्स्टिट्यूट करेगा वो, तो बी टू कॉमा वन होगा ना सबसे पहले। आई तो मैम वो स्टूडेंट तो जे, है उसके पास। हाँ तो बी बस एक बार कंप्यूट हो जाएगा, उसको वो यूज कर लेगा, तो नहीं फर्क पड़ेगा। जो देखो अगर ऐसा होता है ना कि उसके पास नहीं है, वो उसको एरर दिखा देता है, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, इट विल रन, क्योंकि पहली बार उसको जे पे ही चाहिए, मतलब जे वन पे चाहिए, और जे वन पे तो सब कुछ है, स्पीड भी है। अच्छा ओके वेलोसिटी ओके 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 आई गॉट इट। वी आई जे वो तो पहले ही है ना उसके पास। तो मैम मैम अगर P अच्छा के बाद हम I+1 को मैं J+1 लिखें तो बट वो वो फिर V को अपडेट भी करता रहेगा ना साथ में। हाँ हाँ बिकॉज नहीं, बट हम वी में ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ जे है और एक तरफ जे प्लस वन है, क्योंकि दैट्स नॉट वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। तो वी वाला ऐसे ही रहेगा, बट वो जस्ट एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। जे वन पे आप एक्चुअली क्या करो, दोनों के सेम रख लो इंडेक्स, इसको जे प्लस वन कर दो, बस मैम ये इसमें वी वाले में, बी बी वाला वाले जो में ओके इक्वेशन है। हाँ अगर आप दोनों फिर जे मैम प्लस फिर वन उसके कर दो, पास वी और फिर तो जे मैम प्लस वो वन मैम कैसे बट लेगा हाँ वो? आई नो मैं बता रही हूँ, फिर उसको अच्छा नीचे ट्राई फिर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जब आप वो जे वन डालेगा तो उसके पास पी टू कॉमा टू नहीं होगा ना, तो वो आप यस नेक्स्ट लाइन में कंप्यूट करा रहे हो, तो फिर आपको मैम इनका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन को नीचे रखूं इसका हाँ नीचे रखो, यस मैम अदरवाइज जो पहले लिखा था वो भी ठीक था, उससे बस वो आपके एक्स्ट्रा एक स्टेप डिलेड चल रहा था, क्योंकि देखो ना वो पीछे वाली कैलकुलेशन आपने रिपीट करा दी जो उसके पास ऑलरेडी है। यस मैम देख हाँ ओके हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट्स जस्ट उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेगा कंप्यूट, उसको तो अल्टीमेटली चाहिए जिस टाइम पे उसने मैट्रिक्स में से उठा लेनी है,
हमारी इक्वेशन में सही इंडेक्स होना चाहिए कि 22 लाइन को भी कमेंट कर दो। कमेंट बोल रही, सॉरी, सेमी कोलन डाल दो। अभी जैसे आपका स्लो चल रहा है कुछ सिस्टम, आई गेस मैम ऑनलाइन में चल रहा होगा, मैं इसमें ऑफलाइन वाला ही डाल हो सकता है। नहीं नहीं, बाकी लोग भी शायद कर रहे हैं ऑनलाइन, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वैल्यूज देखो, यू कैन सी वैल्यूज चेंज तो हो रही हैं। अभी आपने बीच में ही फिर से बंद कर दिया ना कोड। यस मैम, वो बीच में आया भी था। हाँ, तो यू कैन सी वो बाउंड्री कंडीशंस का इफेक्ट जो है जाने लगा है इंटीरियर में। यू कैन सी फ्रॉम योर मैट्रिक्स कि इनिशियल पे भी है, बाउंड्री पे भी है, बट वो अभी इफेक्ट जो है अभी सेम ही वैल्यू है, क्योंकि सडनली इतना राइज नहीं होता है ना, तो वो 0.65 ही दिखा रहा है आपको। वो जब आप ग्रेजुअली उसको देखोगे देन यू सी अ वेरिएशन। एक बार मैम हाँ फिर लाइक इसको रन करने देता हूँ, मे बी मैं बीच बीच में टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो। ठीक है, हाँ, लेट इट रन देन। या स्टॉप शेयर। yeah, anybody else has got it? Final. ईशांगी, हुआ आपका? नहीं मैम, मेरा तो नहीं हुआ। नहीं, क्या एरर आ रहा है आपको? उतना तो हो ही गया था, आपको सिर्फ वो इनिशियल कंडीशन ही चेंज करना था। मैम मेरे को यही था, गुनीत वाले कोड को देख के अब मैं वही कर रही हूँ कि जो हमारा वो इनिशियल कंडीशन था, बस उसी को अब 2 में डिवाइड कर रही हूँ 500 लेके। हाँ, ऐसे ही करना है, वैसे ही हाँ जी मैम। मैम बाकी तो सेम ही है, मैं भी 1 मिनट कर रही हूँ। हाँ, मैम मेरा भी लाइक सेम वही शांगी वाला ही पैटर्न वाला ही कोड था पिछला, फिर मैंने चेंज किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें क्यों एरर दे रहा है, लाइक आ नहीं रहा। अरे ऐसे मत कोड क्या तो करो, जस्ट स्टिक विद योर कोड। सबका अपना नो मैम, कोडिंग नहीं स्टाइल मैम डिफरेंट अपना है। चेंज नहीं किया, मतलब सेम सेम आउटपुट आ रहा था पहले। हाँ, लाइक कोड मेरा पुराना वाला सही चल रहा है, ये वाले में खाली 500 डालने पे बाद पता नहीं क्यों चल नहीं रही है। अच्छा, नहीं वो मे बी माइट बी सम अदर रीजन। यस मैम, बीच में वैल्यूज आई थी जैसे बाउंड्री में 0.400 500 की लिमिट के बाद आई गेस। Yes, anybody else? Divyanshu? Is Divyanshu here? Hello, Divyanshu, where are you? He's not replying. Who else? एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम मेरे में एक अलग ही एरर दिखा रहा है मैम, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्यों आ रही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मैम लाइन नंबर यहाँ पे आ गया 17 में। हाँ, तो ऐसे नहीं लिखना ना। फिर अगर आपको फिर स्टार्टिंग इंडेक्स भी डालो ना आप उसको, कहाँ से लेकर x नॉट तक, 1 से लेकर या 0 से लेकर जो भी है ना, तो 1 ही डालोगे ना, 1 से लेकर x नॉट। या होता है कि हम अकेला कॉलन डालते हैं, अगर हमें लिमिट्स देनी है तो दोनों देनी पड़ती हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, देन इट विल वर्क। एंड सिमिलरली 20 एंड 21 में भी x नॉट प्लस 1 से लेकर लास्ट वाले तक जो भी आपका नोटेशन है n है, तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अभी भी है वहां पे p में 21 लाइन में। आपका वो स्मॉल n और कैपिटल N कंफ्यूजन हो गया। आपने वेरिएशन डाल रखे है ना, कभी आप उसको स्मॉल लिखते हो, हर जगह स्मॉल कर दो। नीचे भी फिर लूप में भी आपको स्मॉल n करना पड़ेगा। चलो चल तो गया, अभी इसको देखते हैं क्या है। ये जस्ट टाइप दैट मैश p। हो गया, वी कैन सी दैट। इसको थोड़ा सा आप रोटेट करोगे। मैम कंट्रोल्स आपको दे दिया मैंने, अच्छा, इसमें ऑप्शंस आ नहीं रहे। ओके, मे बी आपकी तरफ से डिसेबल है। अच्छा एक मिनट, कैसे करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके शेयर स्क्रीन, कहाँ पे होता है ये इफेक्ट, कहाँ से देखना पड़ेगा? मैम क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एनोटेट का ऑप्शन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा अभी। मैं फिर नई शेप रोटेट कर देता हूँ।
हाँ बस इसको यहाँ पे होता है, ये इसके साथ ही होता है ऑप्शन। जस्ट इसके ऊपर माउस रख के थोड़ा होल्ड करके जैसे हम ड्रैग करते हैं वैसे करो। हाँ दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क यार। थोड़ा सा और राइट की तरफ, राइट राइट की तरफ, जिस डायरेक्शन में पहले कर रहे थे उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा और लिटिल बिट नीचे की तरफ करना है, इसको फ्लैट करना थोड़ा सा। हाँ बस 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 या yeah, so now I can explain. So what is happening here? Okay, so you can identify where is your row. So obviously this is density plotted on z-axis. This is your time क्योंकि 2000 तक है, और this is your space. Because otherwise there is obviously otherwise also there is a way to identify, हम interpret कर सके। वो mesh की command में भी customizations होती हैं कि हम axis के labels directly coding में लिख के print करा लें, but it's just convenient way of identifying. I'm telling you कि 0 से लेकर 1000 है तो x है ये, और ये 0 से लेकर 2000 है तो ये टाइम है, क्योंकि हमें पता है हमने 2000 टाइम स्टेप्स दिया है, और ये डेंसिटी है। यहाँ पे इफ यू वांट कि एक्चुअल की x की वैल्यूज डिस्प्ले हो वो भी हम करा सकते हैं, बट दैट्स फाइन, अभी हम सिर्फ उसको क्वालिटेटिवली स्टडी कर रहे हैं। तो यू कैन सी दैट ये 500 पोजीशन है और ये है टाइम इज इक्वल टू 0। तो हमने इनिशियल प्रोफाइल कैसा दिया था कि 0 से लेकर 500 तक डेंसिटी शुड बी, ये 0.65 है, इफ यू कैन सी ये 0.65 का मैग्नीट्यूड है, और 500 के बाद दिस इज 0.4। तो यू कैन सी दिस इज 0.4, 0 नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि बॉटम के साथ टच कर रहा है तो वो 0 है। ये आपको रो की यहाँ पे एक्सेस, तो आप एक्सेस मैनेजमेंट में उसकी स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो कि आपको कौन से वैल्यूज में उसको प्रिंट कराना है या देखना है ग्राफ को, बट अदरवाइज इट्स फेयरली इजी टू सी कि ये आपका डेंसिटी प्रोफाइल है ऐसा। एक्चुअली ये एक्स उल्टा दिखा रहा है ना, ये एक्स इधर से स्टार्ट कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 1000। इसको किसी और तरीके से रोटेट कर लेंगे, वी कैन हैव दिस वे, हम सीधा भी देख सकते हैं उसको, बट इम्पॉर्टेंट इज हमें वो नजर आ रहा है कि दिस इज 0, 0.65 और 500 के बाद। तो ये तो हमारा इनिशियल प्रोफाइल, तो दैट मीन्स इट इज वेल अकॉर्डिंग टू द वे वी डिफाइंड अवर इनिशियल कंडीशंस। अब उसके बाद जो है वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम में चल रहा है। तो टाइम में यू कैन सी कि जो आपने ये शार्प डिक्रीज दिया था उसको, कि सडनली 0.65 से 0.4 वो डेंसिटी ड्रॉप हो जाए, वो टाइम के साथ बदल रहा है, राइट। सो इट इज गेटिंग स्मूथ, इट इज अ शार्प डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूअस प्रोफाइल बिकॉज सडनली इट जंप्स फ्रॉम अ वेरी हाई वैल्यू टू अ वेरी लोअर वैल्यू। मीन्स चाहे इसको ऐसे समझ लो, अगर आप x को यहाँ से लेकर यहाँ तक समझना चाहते हो, whatever, it's a kind of a jump decrease or jump discontinuity, but later on you can see ये smooth out हो रहा है, means you can see this traveling backwards. This is called the information traveling backwards. You can see from here. I'll show you with another interpretation कि actual में ये हो क्या रहा है। जैसे 500 टाइम स्टेप पे आप अगर डेंसिटी प्रोफाइल देखोगे, so it's like this, 1000 पे डेंसिटी प्रोफाइल देखोगे तो इट्स लाइक दिस। तो ये जो है एक शार्प है, ये स्मूथ है, बट ये आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो देयर इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट, बिकॉज अब 3D ग्राफ से यू पीपल आर नॉट मच फेमिलियर, तो उसको रीड करना और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। व्हाट यू कैन डू इज, हम इसको इसके 2 डायमेंशनल वर्जन प्लॉट कर लेते हैं। जैसे हम 2D प्लॉट्स करते हैं डेंसिटी वर्सेस स्पेस, बट हम डिफरेंट टाइम्स पे कर सकते हैं। यू नो मैट्रिक्स तो पूरी नहीं प्लॉट हो सकेगी, क्योंकि अगर आपको 2 डायमेंशनल प्लॉट देखना है तो यू नो कि हम पूरी मैट्रिक्स नहीं प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मैट्रिक्स में से पर्टिकुलर टाइम्स पे वैल्यूज उठानी पड़ेगी। आई नो यू नो हाउ टू डू दैट, यू हैव ऑल द मैट्रिक्स, आपके पास सारी वैल्यूज हैं 1000 क्रॉस 2000। अब उसमें पर्टिकुलर टाइम्स पे उठानी है। जैसे एक हम उठा लेते हैं इनिशियल प्रोफाइल का j इक्वल्स टू 1 का, एक हम उठा लेते हैं से 200 टाइम पे क्या हो रहा है। सो अलग अलग टाइम्स पिक करके वो अलग अलग कर्व्स आ जाएंगे। सो दीज विल बी वेक्टर्स। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस?
So they another way of looking at the things कि how density is changing with respect to time as well as with respect to space, कि आप 2D plot ही कराओ but उसके अलग अलग time से print करा लो, because the interpretation which you are trying to get from here is okay, it's visible, but if you find it difficult to understand ki how I'm explaining that this is smoothing and how this is traveling backwards, so that will be better clear if you plot the 2D plots of this. So as an output, क्योंकि अगर आपको इसको फाइल में लगाना है, so मैं वो आपको पहले बता दूं, आपको एक तो ये 3D वाला आउटपुट लगाना है, ये जो मैश करके आया है, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेना थोड़ी कि ये इनके लेबल्स लगा देना कि ये डेंसिटी है, ये टाइम है और ये स्पेस है, एक पर्टिकुलर अच्छे से एंगल पे उसको रोटेट करके उसको सेव करना है फिगर को एज अ इमेज फाइल, क्योंकि आप बिकॉज आई वांट टू सी द वेरिएशंस लाइक दिस एटलीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। और हमें दूसरी आउटपुट है ये जो मैं अभी बता रही हूँ कि पिकअप 2 to 3 और एटलीस्ट 3 to 5 डिफरेंट टाइम स्टेप्स और उनकी अलग अलग कर्व्स, और आपको पता है कि एक ही 2D प्लॉट में अलग अलग कर्व्स को कैसे प्लॉट कराते हैं, होल्ड ऑन की कमांड से। So do that part and then you will see, otherwise it's fine. So from that you will have to see the variation. So you also do one thing, आप इसमें Q भी compute करा लो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था Q you need to compute is rho I j plus 1 into, तो ये Q का जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल Q is rho into V, तो एक तो ये लूप के अंदर भी आएगा और एक ये इस Q के लिए भी आपको इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं तो उसके पास इनकम्प्लीट डेटा होगा ना, ये तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जे और आई की, तो टू कंप्लीट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म आपको क्यू की भी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस बतानी पड़ेगी, मतलब वो यू डोंट नीड देम, रो और वी के टर्म्स में लिखा है। हाँ हाँ, तो यहाँ जस्ट लिखना ही है Q at 1, this is rho at 1, जो भी मतलब रो और वी का ही फॉर्मूला है, बस वही लिखना है, just you need to write that. Okay, I hope that's clear to everyone. So just do this task, ये 2D plots वाला, because आपका code complete हो चुका है, so you can do that, and then you can again share your screen. In the meanwhile, we can see rest of the people why they are not getting the answers. So you can stop sharing. इसमें ना डाउट भी था मैम, डाउट कैसे था एक मिनट, let me clear my annotations. Now you can ask. डाउट ऐसे था जैसे ना हमारे पास सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे चला रहे थे ना 1,1 पे, है ना मैम, तो उसके बाद जब सेकंड लूप आई तो हमारा ये पॉइंट आया 2,2 वाला, इससे आगे हमने फर्दर सारे पॉइंट्स कैलकुलेट किए, देन में हमारे पास जो अगला पॉइंट आएगा वो 3,3 वाला आएगा, जब जे और आई दोनों कंप्लीट हो चुके होंगे। हाँ नहीं, 3,2 भी आएगा ना, सॉरी 3,2 आएगा, 2,3 डायगोनल आएगा मैम, 3,2 तो कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा ना, देखो आप क्या एग्जीक्यूशन देखो लूप का। ओके मैम, मैं समझ गया मैम, है ना, वो सभी के लिए है, जैसे ही जे बदलेगा उसको आई हमेशा 2 से ही स्टार्ट करना है, आई को हमने जे का फंक्शन नहीं ना बनाया, ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं फाइल में कौन सा वेरिएशन दिखाना है, क्यू वाला या ऐसे पी और बी में रहने दें? पी में। Excuse me, हाँ यस। हम जब लाइक मैश रन कर रहा हूँ तो मैम वो फिगर खुल नहीं रहा, तो लाइक नेट की वजह से हो रहा है या फिर लाइक सम अदर? I'll show you. अच्छा, क्योंकि पी में वैल्यूज अब आ गई, मैम आपको दिख रहा है? नहीं फिगर नहीं दिख रहा अभी। मैम एक
मैम आउटपुट नहीं आया, लाइक आई डोंट नो क्या रीजन हाँ, है। एक बार पी में जाना, एक बार वेरिएबल में वैल्यूज हैं, पी मैट्रिक्स में तो वैल्यूज तो हैं, बट ये सेम ही है, तो 0.65 बदल ही नहीं रहा है ना उनको, सारी सेम है 0.65। यस मैम, आई डोंट नो क्यों हुआ है। नहीं नहीं, बीच में कहीं पे कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैम इसका लोड करना, इसको आगे देखता हूँ। हम्म, इतना हैंग क्यों कर रहा है ये आज? कोई बात नहीं, आप आराम से देख लेना, बट एक बार इसमें यस मैम। इसका ये मतलब होगा कि आपका वो लूप में कुछ मिस्टेक है, लूप वाली इक्वेशन में, क्योंकि वो सेम ही रख रहा है ना, उसको अपडेट नहीं कर रहा है। यस मैम, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, कोड में आप अपना लूप वाला इक्वेशन चेक कर लो। मैम मेरा अभी भी नहीं बन रहा जैसा सौरभ का बना था। हाँ दिखाओ, शेयर करूँ। वेट अ मिनट, 2000 पे कुछ गड़बड़ है, मतलब लास्ट टाइम पे वैल्यूज आर सडनली ड्रॉपिंग टू 0। टी कितना है आपका? टी कहाँ है? कैपिटल टी कितना दिया आपने? 2000।
हाँ ठीक है, रो दिस वी दिस, हम यहाँ पे t-1 करना पड़ेगा क्या जे लूप में? अच्छा J+1 है ना वहाँ पे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्लॉट कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा। हम बस ये आ गया है और कुछ नहीं हुआ। ओके 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 ओके, आई कैन सी आपने बाउंड्री कंडीशन कहाँ दी है, सॉरी जो, yeah, you just look at your 16th line, it should be 0.4, 500 के बाद 0.4 है ना इनिशियल कंडीशन, पहले 0.65 है ना। हाँ जी मैम। हाँ तो इसको चाहे कोड में ही लिख दो मैश पी को, वो हर बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है मैम। हाँ अभी तो आ गया होगा, देखो फिगर। हाँ जी मैम आ गया। हाँ ठीक है, अभी इसको रोटेट करके दिखाओ तो, या इट्स फाइन, आई कैन सी फ्रॉम हियर। 0 आपका स्पेस वाला किधर है, यहीं पे है ना। हाँ वो आपका टाइम, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी बड़ी रोटेशंस होती हैं, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट हो जाता है वो, बस आपको उसको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, आपका इधर स्पेस है, अब आपका टाइम पीछे है ना, तो वो आपका यू कैन सी एट द बैक एंड दिस हम वन। 0 से 0.7 वाला, ये वाला। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, ये है ना टाइम इज इक्वल टू 0, तो ये आपका है स्पेस x इक्वल टू 0 और ये 500 है, तो ये 0.65 है और ये 0.4 है, तो आपका प्रोफाइल ये है। एक मिनट, वो क्या, दिस इज योर इनिशियल प्रोफाइल विच इज शार्प वन, उसके बाद दीज आर योर प्रोफाइल, वो स्मूथ होता जाता है जो है टाइम के साथ। ये आपका टाइम इस तरफ है ना 0 से लेकर 2000, सो ये इनिशियल है, शार्प है उसमें, बाद में वो स्मूथ हो जाएगा प्रोफाइल, राइट। ओके सो मैम। यू जस्ट डू दैट। ठीक है, तो आप अभी करो ईशांगी, मैं आपको बताती हूँ, आप यू जस्ट कीप योर स्क्रीन शेयरिंग ऑन। ठीक है मैम। हाँ तो इसको कमांड विंडो पे लिखो, वो फिगर बंद कर दो 3 डायमेंशन वाला, मतलब बाद में सेव कर लेना आप दोबारा से कोड को रन कोई कर। बात नहीं मैम, कर दिया। हाँ इसको कमांड विंडो पे जस्ट गो एंड राइट p। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट कराते हैं ना, उसको p टाइम फिक्स करना है हमें जैसे, और कॉलन रखो उसको, स्पेस की जगह पे कॉलन कॉमा 1। अच्छा इसको प्लॉट करा लो, प्लॉट का कमांड यूज कर लो ना, क्योंकि हम अब प्लॉट करा रहे हैं। प्लॉट x x वर्सेस प्लॉट कराएंगे ना। अच्छा x तो आपने कहीं डिफाइन नहीं ना किया ऊपर। नहीं किया मैम, सिर्फ हाँ x नॉट डिफाइंड है। हाँ, तो इसको आप x इज जस्ट वेक्टर फ्रॉम 1 to n ना, तो राइट हाँ 1 जी to n। मैम। हाँ जस्ट राइट 1 to n कॉमा p, या अब ये आपके दो वेक्टर्स हो गए ना, एक x हो गया 1 to n और एक p हो गया, इसको एंटर करोगे। मैम 1 to नहीं ये p हमारा। वो पूरा ही ले लेगा, वो सारे ही चाहिए हमें। मैम बस एंटर कर दूं? हाँ हाँ हाँ, तो मैम ये, ये आ रहा है। हाँ तो ये देखो इनिशियल प्रोफाइल आया ना, क्योंकि मैंने टाइम p में 1 दिया है, तो 0.65 to 0.4 यू कैन सी दैट ना। एक मिनट, समझ में आया ये? इनिशियल डेंसिटी नहीं। प्रोफाइल बता रहा है ना, ये देखो दिस इज योर ऑप्शंस, एनोटेट। हमने पूरी मैट्रिक्स p के प्लॉट कराने की बजाय सिर्फ p का फर्स्ट टाइम, क्योंकि p में डेटा स्टोर है ना, p इज अ मैट्रिक्स, तो उसमें हम अलग अलग टाइम्स पे पिक कर लेंगे मैट्रिक्स में से। तो पहला टाइम है 1, मीन दैट इज योर इनिशियल कंडीशन एक्चुअली, तो यही हमारी इनिशियल कंडीशन थी कि 500 तक डेंसिटी 0.65 रहे और उसके बाद जो है 0.4 रहे, ये 0.4 है। तो बेसिकली इट इज द प्लॉट ऑफ योर इनिशियल डेंसिटी प्रोफाइल। अब हम, ये क्लियर है सबको?
दैट्स हाउ, जो मैं आपको बता रही थी कि हमारा इनिशियल डेंसिटी प्रोफाइल ये है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से पहले 0.65 है, उसके बाद 0.4 है। ये बेसिकली वही प्लॉट हो रहा है ना, यू कैन सी ये है लाइन आपको दिख नहीं रही यहाँ पे, ये प्लॉट है। दिस इज अ प्लॉट लाइक दिस, बिकॉज हमने टाइम को 1 दिया था। इज इट फाइन? इज इट मेकिंग सेंस? यस मैम। Yes. हाँ, तो अभी होल्ड ऑन करके यू जस्ट रिपीट द सेम कमांड, बस ये पी में जो टाइम 1 है उसको बदलते रहो, रैंडम ले लो, 100 टाइम ले लो, 200 टाइम ले लो, अलग अलग टाइम्स पे उसको देखते हैं। होल्ड ऑन एंटर और ये सेम कमांड लिखते रहो, वो फिर उसी फिगर में जाता रहेगा। हाँ, टाइम बदलते रहो। नहीं, इतना भी पास मत लो, थोड़े दूर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2000 टाइम स्टेप्स है ना, तो आप 100 के इंटरवल पे ले लो। यूनिफॉर्मली भी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक 3 और 4 कर्व्स। अभी देखोगे उसको, अरे बंद नहीं करना था, क्योंकि आप कमांड विंडो में लिख रहे हो ना, फिर वो चला जाता है, आपको दोबारा से करना पड़ेगा दोनों। यू कैन टाइप द सेम थिंग इन कोड, बेटर आई सजेस्ट यू आप कोड में चले जाओ, यही सेम चीजें, क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मैश पे अभी मत लिखो क्योंकि फिर वो उसी फिगर में ओवरराइट कर देगा। जब आपको मैश भी लेना है, प्लॉट भी लेना है, फिर आप उसको 1 बाय 1 करके कर लेना। हाँ, अभी आप प्लॉट ही करा लो। इसको पहले सभी लिख लो, 3-4 वैल्यूज के लिए लिख लो और फिर उसको प्लॉट करा लेना, फिर रन करना कोड को। मैम जैसे कि ये हम टाइम के लिए कर रहे हैं ना मैम, हाँ हाँ, ऐसे मैंने स्पेस के लिए करके देखा, लेकिन मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा कि ये क्या बताना चाह रहा है। उसमें ये है कि दैट इज समथिंग लाइक आप, कर्व अलग ही बन रहा है। हाँ एक्चुअली उसमें क्या है, डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है वो दिखा रहे हैं। उसमें पॉइंट फिक्स कर दिया ना आपने अलग अलग टाइम्स पे, उसमें आप टाइम के इंटरवल ले रहे होगे, तो बट वो दैट डज नॉट फिजिकली मेक सेंस कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी कितनी है, क्योंकि डेंसिटी इज ऑलवेज लुक्ड एट ओवर अ स्पेस इंटरवल, राइट? तो उसमें ना एक इंटरवल भी दिख रहा है कि मैम 400 से लेके 500 रेंज के बीच में ही बस ग्राफ शो हो रहे हैं, उसके मतलब उसके नीचे और उसके ऊपर मैम हमेशा 0 रह रहा है। अच्छा चलो, वो मैं देखती हूँ अभी। ईशांगी बस अभी 1500 ले लो कुछ भी। हाँ चलो, इसको रन करो अभी, 2000 भी ले लो चलो। हाँ, you just run it once. Meanwhile, I'll just clear all this. Yeah. So you can see the smoothing in the curves. All of you can see that. पहले वाला जो हमारा इनिशियल प्रोफाइल था, that was very sharp, जो बिल्कुल एक शार्प डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद ये कर्व यू कैन सी स्मूथ आउट होती जा रही है टाइम्स के साथ। अभी हमने यहाँ पे वैसे बताया नहीं कि वो आप वेरिएशन कर सकते हो कि कौन सी कर्व कौन से टाइम पे है, बट आई कैन टेल यू एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज समथिंग लाइक, पहले ये प्रोफाइल था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, बट आपको एक्चुअली अभी स्मूथनिंग सिर्फ एक तरफ से नजर आ रही है, दूसरी तरफ नहीं नजर आ रही है। एक्चुअल में ये फाइनल प्रोफाइल ना ऐसा बन जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये होता है, लास्ट में वो दोनों तरफ से स्मूथ हो जाता है, यहाँ से भी, लेफ्ट तरफ से भी, राइट तरफ से भी। बट वो क्यों नहीं नजर आ रहा है अभी? बिकॉज हमने चेंज करना पड़ेगा ना, फिर अभी हमने सिर्फ टाइम का चेंज किया है। हाँ, नहीं आप टाइम और बढ़ाओ। अपने कोड में हमने 2000 तक गए हैं ना, अभी तो चलो आपको ऊपर ही चेंज करना पड़ेगा, कैपिटल T 2000। दैट मीन्स 2000 टाइम स्टेप्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव अस अ स्मूथ कर्व। इसको और बढ़ाएंगे तो देन प्रोबेबली विल हैव द स्मूथनिंग फर्दर। लिखा रहने तो ये सब बस ऐड ही कर। अच्छा, हाँ थोड़ा और ऐड करोगे तो यू विल फर्दर एबल टू सी द स्मूथनिंग इफेक्ट गोइंग ऑन। सो दैट मीन्स ये यही है कि इनिशियल आपने एक डेंसिटी दिया था, दैट वाज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस, बट टाइम के साथ वो स्मूथ आउट हो जाएगी, डिस्टर्बेंस आपका फ्लो स्मूथ हो जाएगा। रेड लाइट पे भी ऐसे ही होता है ना कि जब सिग्नल बहुत देर के लिए लगा रहता है रेड लाइट, तो हमें पता है अच्छा यहाँ भीड़ हो जाती है, बट जैसे ही वो सिग्नल फिर से ग्रीन होता है, सो व्हाट हैपेंस, वो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, राइट?
इधर वाली डेंसिटी इस तरफ जानी शुरू हो जाती है, तो वो शार्प पीक नहीं रहती है और ये रहता है आपके पास। ओके, अभी भी उतना प्रॉपर नहीं आया है, मे बी आई हैव टू, मैं अपने कोड में रन करके उसको देखती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट यस मैम। टू आइडेंटिफाई कि कोई और गलती तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो ऑल ऑफ यू हैव टू फिनिश दिस टास्क एंड कंप्लीट योर दिस एक्सपेरिमेंट। आई विल शेयर द एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल है और क्वेश्चन है वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ LMS पे। बस मैं मैम तो मैम ये वाली प्लॉट्स बनाने हैं जिसमें स्मूथनिंग दिखा रहे हैं हम, जैसे ये वाला। हाँ, you have to run it for I'll give you the exact statement in that question कि कौन कौन से टाइम्स के लिए आपको एग्जीक्यूशन कराना है। ठीक है, बस मैं एक बार अपना कोड रन करके देख लूँ। मैम ये स्मूथनिंग का क्या मतलब है कोड में, मतलब ये ग्राफ में? प्रोफाइल है कि आपका जो आपने इनिशियली उसको एक डेंसिटी दिया था प्रोफाइल, अब टाइम के साथ चीजें बदल रही है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स ऑन रोड जो है वो ऐसे नहीं रहेगी, राइट? पहले क्या था कि रेड लाइट से पहले बहुत भीड़ थी, अब टाइम के साथ जैसे ही रेड लाइट ऑब्वियसली ऑफ हो जाएगा, ग्रीन लाइट हो जाएगा, तो वो भीड़ पीछे से शिफ्ट होके वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो जो आपका डेंसिटी है पीछे की तरफ, रेड लाइट के पीछे की तरफ, वो कम होना शुरू हो जाएगा। बट बिकॉज ये अभी कम टाइम के लिए है, मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है कि जैसी थोड़ी कर्व ये आनी चाहिए वैसी आई नहीं है, तो मैम अभी मैंने 7500 के लिए किया है, ये देख लो। हाँ, तो ये नहीं, अभी आई एम नॉट फाइंडिंग इट राइट। कितना टाइम है हमारे पास? वैसे तो टाइम हो गया है, पता नहीं इसके बाद क्लास तो नहीं होती कोई? नहीं मैम हमारी तो नहीं होती। हाँ, मतलब आई थिंक 6 बजे के बाद नहीं होते। जस्ट गिव मी 1 मिनट ईशांगी, यू स्टॉप शेयरिंग। मैं 1 मिनट बस अपना मैटलैब कोड रन करके देखूं कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग। ओके, ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। वो I'll just look at something else कि क्या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट मैं जिस तरह का उससे बिहेवियर चाहती थी वो आ नहीं रहा है, वो इस क्वेश्चन में ऐसे ही आ रहा होगा बिकॉज हमने जो डेटा यूज किया है। So what I'll just do some little experiment. Means ये गलत नहीं है, it is just I wanted to have some other type of visualization also. Actually ये dynamics है कि how traffic behaves with time. तो अब आप 2-3 कंडीशंस दे सकते हो हम अलग अलग क्वेश्चंस है, लाइक हम ट्राई कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे। हाँ, I'll give you the different set of parameters, तो उसके लिए आप ट्राई Yes, करोगे। एक्चुअल में वो स्मूथनिंग का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। उसका ये मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जैसे ये प्रोफाइल था, अब क्योंकि आपने इसको टाइम का फंक्शन बना दिया है, तो ये टाइम के साथ इस प्रोफाइल ने वेरी होना है। तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि जैसे मैं रेड लाइट वाला एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं ट्रैफिक सिग्नल के पीछे और ये लाइट रेड है। अब टाइम में एवोल्यूट होना मीन्स ये लाइट टर्न्स ग्रीन,
So light turns green, so the density will start distributing from this point to the after signal के बाद. तो इसलिए डेंसिटी के मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी व्हीकल्स इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो क्या होता है कि इतना शार्प डिस्टेंस डिफरेंस उनमें मेंटेन नहीं रहता है डेंसिटीज वैल्यूज में, क्योंकि वो इफेक्ट सीधा यहाँ नहीं जाएगा ना, तो वो यहाँ आता है कि पहले इस एरिया में इतने पार्ट में डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ से डेंसिटी थोड़ी नीचे आती है, राइट. फिर थोड़ा और पीछे और टाइम के लिए रन करोगे तो फिर और स्मूथ आउट हो जाता है. ऐसे जब ट्रैफिक जाम खुलता है तो ऐसे ही खुलता है ना, आपके पास एक जाम लगा हो तो सबसे पहले आगे जहाँ जाम का सोर्स है, जहाँ बिगिनिंग है, पहले वहां डेंसिटी कम होनी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे जाम पीछे की तरफ. ये जो जाम और ये वाली सिचुएशन होती है, ये हमेशा बैकवर्ड ट्रेवल करते हैं विद टाइम. दिस इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग बैकवर्ड्स. तो वो जो धीरे धीरे स्मूथनिंग हो रही है या जाम खुल रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, वो इंफॉर्मेशन पीछे की तरफ स्प्रेड होता है. तो दैट्स वाई आपको प्रोफाइल जो है ऐसा नजर आ रहा है. यहाँ पे डेंसिटी जो है कम हो रही है, क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक रन कर रहे हैं, तो अभी वो उतना टाइम नहीं हुआ है कि उसका इफेक्ट यहाँ जाए, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ऑलरेडी कम थी, तो वहां की डेंसिटी और कम नहीं हो रही है. ओके, सो वी आर जस्ट गेटिंग प्रोफाइल्स लाइक दिस, मींस इट्स 100% accurately behaving like the real traffic should behave. ये आप अगर हायर ऑर्डर मॉडल्स करोगे, वहां पे भी यही प्रोफाइल्स आता है कि जहां जहां आप डेंसिटी में डिस्टर्बेंसेस देते हो, टाइम के साथ वो डिस्टर्बेंसेस स्मूथ आउट होती हैं. तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि जाम नहीं लगेगा. आपका रेड लाइट वाला जो कॉम्बिनेशन था डेंसिटी का, वो ऐसा था कि इवेंचुअली टाइम के साथ वो स्मूथ हो जाएगा ट्रैफिक. देयर विल नॉट बी अ ट्रैफिक जैम. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस. So that's working okay, that's working right. But ये क्योंकि एक lower order model है, so it cannot capture everything very accurately because it's just one first order model. बहुत higher order models भी exist करते हैं which are able to capture the dynamics more precisely. But you can see हमें 2 labs लग गए हैं इसको एक equation को solve करने में. So it will have one more equation added to it, so the computational complexity will rise. So that can add to a bit little complications more, but that's why I wanted to give you that as a research project if anybody wants to take that, because it's में सिर्फ computational challenging है और कुछ नहीं है, right? आज भी हमारा वो discussion नहीं हुआ, so ठीक है. Most probably next time we'll discuss those projects and we'll do the final distribution of that. Right, I'll share this lab recordings, and most probably in a day or two I'll be giving you another assignments also, and वो videos भी YouTube पे डालने हैं. So many things to do, so I'll do that over weekend and then I'll see you next week. हम रिसर्च का जो था वो नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे. हाँ, next week करेंगे. ओके. Okay, good evening, bye.